got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop. No. Hello guys, namaste. तो कैसे हो आप लोग? I hope all of you are doing really good. So guys, today I'm going to talk about a topic which is really important, and along with that, in a dynamic environment as of now, we have to talk upon this topic and have to take this topic very seriously. This is something which makes a complete sense. It is something which is totally a palpable content which I'm going to give you, which I'm going to deliver to you people right now, right here. The topic, what is it? Guys, it is something that you must have come across on internet, on YouTube several times. And I'm not trying to deterrent anybody or let anybody down. I'm just telling you people, there are people with absolute great IQ, with great intelligence. They have made content upon this particular topic. But here I'm going to give you additional tips to as to what you can do in order to get the maximum benefit out of it. तो हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत लोगों ने बात कर दी है. Having said that, I'm not trying to deterrent anybody or trying to let anybody down. But apparently today what I'm going to be talking about is something you guys might not have come across the same content. So just go through it and I hope you guys will like it. And apart from that, you guys will also grab some of the most important, valuable outputs from here. So without further ado, without delaying any further, let's get into the topic straight. Terminate boys' characteristics and become a man. Well, do you know, and I rightly believe in this, I have this trust on this particular saying, is that till the time you're not a part of any incident, any bad incident which has happened to you personally, you do not terminate or ambulate yourself from a boy to a man. Transition which happens, which is changing from a boy to a male, requires lots of hardship, requires lots of hurdles, and requires lots of stoppages in between, lots of hindrances, lots of things which you have to tackle, and you have to actually climb up the ladders of success, which is quite difficult, but it is not impossible. People at the top, they are the top because they have a different mindset altogether. So partying, going for a day out, going for a night out, gallivanting with opposite sex, and ejaculating 3, 4, 5 times a day, and watching things which you're not supposed to, and along with that, you have got many several things. You have got no vision, you have got no discipline, no consistency whatsoever. Saturday night, Sunday night partying is required. आपको जाना ही है, आपको पार्टी करना ही है, लॉन्ग ड्राइव पे आपको जाना ही है. There is no speed limit. There is nothing of that sort. You're harming your own organ. आप सिगरेट ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, thinking that ये सब आपको cool बना रहा है. I'm telling you people, it doesn't make you guys cool. I'm not promoting it or I'm not going against it. I'm just telling you, it doesn't make you guys cool. तो आपके ऊपर है. मैं सजेस्ट करूँगा कि avoid them as much as possible. And apart from that, fighting in the college over girls, simping for girls, simping in front of girls. Guys, taking care of your girl, taking care of your girlfriend is completely cool. But once she doesn't understand you, she doesn't get what you're trying to convey to her, I do not think that you have to waste much of your time there. Try 2, 3 or 4 times, but then after that, just stop, man. You've got your own dignity. You have got your own self-respect. I'm telling you, these are things which you have to implement in order to see a change in your overall personality. No one is extorting you from doing these all things. So it's your take. You want to be a boy for the rest of the life, or you want to become a man. A real man has to deal with the hardship, has to go against the laws, and has to completely focus on his goal without interrupting in anybody else's task. The list is really long, guys. Gossiping, backbitching, making fun of teachers, disrespecting your teachers, these are all good to a certain extent and in a certain limit. But once you're in your teenage, especially once you're in your late teenage, that is 17, 18, 19, 20, you're supposed to be just shutting all of this from your own system. और आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा और रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर लेना पड़ेगा. Moreover, let me tell you guys, do not confuse me
that I'm totally against teenagers or people who are just about to enter their 20s or early 20s. Guys, I'm telling you, this has got nothing to do with your age. It's just that you are at a point that you have to take responsibilities, that you have to blame yourself for things you're not getting done. You cannot be blaming your father, your mother any longer. So it's better, the sooner you understand, the better it will be for you people in the longer durations, and also it will be brighter for you and your future. More likely enjoying the phase of being a boy is really important and I totally get it. मैं चाहता हूँ कि आप लोग enjoy करो जब आप ये सारी हरकतें करते थे, लड़की के पीछे भागते थे, नॉटी हरकतें करते थे, अपने टीचर्स के साथ मजाक करते थे, ये सब चलता है यार और ये आप एक्सपीरियंस करो भी। नॉट बार्डिंग यू पीपल फ्रॉम दैट। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक सर्टेन टाइम तक अच्छा है, इसके बाद आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या सही है मेरे लिए, क्या सही नहीं है मेरे लिए। गाइस, आई एम टेलिंग यू, देयर आर पीपल who is about 35 years of age, who is about 40 years of age, who is about 45 years of age, who is even a father of 2-3 children. I am telling you, the way they walk, talk, or actually live their life in general, their lifestyle is just not worth it. Guys, आप देख रहे हो यार, जो बंदा 18 साल का है वो ये चीज़ समझ चुका है, तो वो अपने आप को इतना अच्छा कैरी आउट कर पा रहा है कि वो देखने में बच्चा है, देखने में छोटा है, बट he has got a different mindset altogether. He understands life. वो लाइफ को एक अलग नजरिया के साथ देखता है. Whereas a person who is earning whatever money, be it 4 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, whatever it is per month, but still doesn't have that manly behavior. That masculine personality is missing in that particular person. आप पैसा कमा लो, पैसा सब कुछ है, ये मैं समझता हूँ, पर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी कुछ होती है यार. आपके साथ कोई बंदा उठे बैठे आपके पैसे के कारण, विच इज परफेक्टली फाइन, बट आपके साथ कोई बंदा उठे बैठे बस आपके पैसे के कारण, दैट इज अ डिजास्टर. You should be having some sort of a reputation, and along with that the list goes on, and you should be knowing that whatever you're doing has a purpose behind it, and you should be comfortable in your own skin. See, the brutal fact remains that we as men is created a creature which has been created by God to hustle, to provide for the families, to provide for your firm, to provide for your upcoming generation, and to provide for the society along with that. आपको ऐसा डिज़ाइन किया गया भगवान ने कि आप ये सब चीज़ में एक्सेल करो. अगर आप नहीं करोगे तो कोई और मैन करेगा, उसको रिकग्निशन मिलेगा, उसको प्राइड मिलेगा. तो इसको समझो और आगे की तरफ बढ़ो. आई डो नॉट वॉन्ट you guys to be a mediocre. Do not compare yourself with anybody else. But whatever you're doing, whatever profession you have chosen, या आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको एक अच्छे इंटेंशन के साथ और एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ उसको कैरी ऑन करो. ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो काम, वो प्रोफेशन आपको लॉन्गर रन में आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा. गोज विदाउट सेइंग यार, आपको बता रहा हूँ, आपको शायद अभी आप वो एक्सपीरियंस ना कर पा रहे हो, पर अगर आप अपने आप से ट्रू हो, अपने प्रोफेशन की तरफ ट्रू हो, तो आपको उसका रिटर्न मिलना ही मिलना है, नो मैटर व्हाट. वेल, आई बी गोइंग थ्रू सम पॉइंट्स और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है. तो द फर्स्ट वन इज दिस: यू हैव टू बिलीव इन नाउ. नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नो डिलेइंग, नॉट लिविंग इन एनी सॉर्ट ऑफ ग्लोरी और एनी सॉर्ट ऑफ डे ड्रीम्स. आपको हमेशा अपने प्रेजेंट पे रहना है. वॉट एवर यूर डूइंग, आपका माइंड, आपका सोल, आपका बॉडी, फिजिकली और मेंटली आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहना है, नो मैटर वॉट. क्योंकि क्या होता है ना यार, सपोज यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ टास्क समवेयर एंड आपका माइंड आपके पास्ट में है, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे. In spite of the fact that you are there, you are working hard, आपका अगर माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ उस जगह पे नहीं है, तब आप नहीं दे पाओगे. और बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ. जो कर रहे हो अभी कर रहे हो. जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान इधर है. ना ही मैं सोच रहा हूँ अपने एक्स के बारे में, ना ही मैं सोच रहा हूँ अपने काम के बारे में कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, या इसके पहले मैंने क्या किया था, वो काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ. क्योंकि अगर मैं वो सब सोचा
तो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो हैम्पर हो जाएगा, एंड दिस इज समथिंग विच आई डू नॉट वॉन्ट। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, आपको वो काम अच्छे से करना है, एज इन आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल उस काम के प्रति होना चाहिए। चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप लू में हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पैसा कमा रहे हो, चाहे आप अपना टास्क कर रहे हो, चाहे कोई हॉबी कर रहे हो, या चाहे आप कोई पार्टी कर रहे हो। सेकेंड वन, लर्न टू से नो, नो मैटर वॉट। अगर आपके सामने कोई भी है, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, अगर आप जानते हो कोई काम अगर आप कर रहे हो और वो काम सही है, वो राइट है, वो सबके भलाई के लिए है, तब आप सिंपिंग एटीट्यूड छोड़ के आप कंप्लीटली उस बंदे को उसके फेस पे ना बोलो। ज़्यादा ब्लंटली ना नहीं बोलना है, ज़्यादा इंसोलेंट साउंड नहीं करना है, रूड साउंड नहीं करना है। बट अगर आप जानते हो कुछ कर रहे हो आप, वो सही है, या फिर किसी ने आपको कोई काम बोला और आपको वो काम सही नहीं लगा, तब आप उसको कंप्लीटली उसके फेस पे ना बोलो। गाइस, एक बारी बुरा लगेगा आपको भी, उसको भी, बट इन द लॉन्गर रन आपका माइंड बहुत फ्री रहेगा और उस बंदे के अंदर भी एक लिमिट ड्रॉ हो जाएगी कि यार मुझे इस बंदे से क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करवाना है, और इस बंदे का आइडियोलॉजी कैसा है, कैसे प्रिंसिपल्स है उसके, और ये बंदा कैसा वर्क करता है। तो पीपल आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। थर्ड वन, बी अ नाइस गाय, बी अ कॉर्डियल पर्सनैलिटी, बी अ लविंग पर्सनैलिटी, बी अ केयरिंग पर्सनैलिटी, बट डोंट बी अ फुलिश। समझ रहे हो आप बात को? आप सबके लिए सब कुछ करो, सबको खुश रखो, बट आप मेक श्योर करो कि एट द एंड ऑफ द डे आप भी खुश हो उन लोगों से। इट्स लाइक अ वेरी सिंपल बार्टर सिस्टम। जो हैप्पीनेस आप दे रहे हो किसी को, जो हेल्प आप कर रहे हो किसी को, वो आपको रिसीव होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस चीज़ को स्टॉप करो, क्योंकि आप यहाँ पर बस फुलिश बन रहे हो और कुछ नहीं। नेक्स्ट, हैव अ क्लियर इनकम जनरेटिंग पर्पस। आप कोई भी काम कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, आप किसी भी विलेज में काम कर रहे हो, टाउन में काम कर रहे हो, सिटी में काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे एम्प्लॉय हो, या आप खुद ओनर हो, आप बिजनेस चला रहे हो, हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू केटर टू वॉट एवर पीपल और वॉट एवर थिंग्स you are surrounding with. You have to have a good status, good bungalow, good car, a good wife, and along with that your family members, your children has to be happy with you. आपको ये समझना पड़ेगा। और ये सारी हैप्पीनेस कहाँ से आती है? आपके बिहेवियर से तो आएगी, साथ ही साथ आपके इनकम जनरेटिंग पर्पस से आएगी, आपके इनकम जनरेटिंग सोर्स से आएगी। तो हैव अ क्लियर पर्पस, और हमेशा आप स्केल अप करने का ट्राई करो। हमेशा आप फाइनेंशियल नॉलेज वाली चीज़ें देखो, अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाओ और सीखो कि कैसे कैसे पैसा हम बढ़ा सकते हैं। गाइज, अ वेरी सिंपल टिप आई एम गिविंग टू योर पीपल इज दैट द मोर योर माइंड ग्रोज द इनकम ग्रोज। एक और बार सुनो आप, द मोर योर माइंड ग्रोज द इनकम ग्रोज, द इनफ्लो ऑफ द मनी ग्रोज। तो आप पैसे के पीछे मत भागो, आप अपने पैशन, प्रोफेशन के पीछे भागो, पैसे ग्रो होना निश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट कंपेयर, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर योर हाइट, डू नॉट कंपेयर योर स्किन टोन, डू नॉट कंपेयर योर हेयर स्टाइल, डू नॉट कंपेयर योर ड्रेसिंग सेंस, डू नॉट कंपेयर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, डू नॉट कंपेयर द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, डू नॉट कंपेयर योर एक्सेंट, डू नॉट कंपेयर योर फ्लॉज, डू नॉट कंपेयर योर स्ट्रेंथ. Do not admire your strength very much. Do not get cocky about your strengths. These are the सब factors जो आता है आपके do not compare yourself with anybody else. Guys, जहाँ आप किसी और को compare करोगे आप insecure होगे, आपकी जो feeling है वो dwindle होगी, feeling dwindle होगी, आपके thoughts dwindle होंगे, thoughts आपके ऊपर नीचे होंगे, तब आपके एक्शंस ऊपर नीचे होंगे, आपके एक्शंस ऊपर नीचे होंगे, तब आपका रिजल्ट ऊपर नीचे होगा। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योरसेल्फ रादर देन फोकसिंग और गेटिंग इनसिक्योर बाय अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी से कुछ सीख सकते हो तो सीखो, बट किसी को देख के ये मत करो या इसमें ये गलत है, ये बुरा है। जो बुरा है उसको छोड़ दो, जो अच्छा है उसको ले लो, बस सिंपल एज दैट वन। वर्कआउट एंड बी इन शेप।
आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कितना ही पैसा है आपके पास, कितने ही बंगलो है, कितने ही आपके पास फरारीज है, कितनी ही आपके पास BMW, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस है आपके पास, गाइस आपका बॉडी अगर फिट नहीं है, आप कितना ही हैकेट पहनते हो, कितना ही आप हर्मस पहनते हो, कितना ही आप प्राडा पहनते हो, कितना ही आप लुई विटॉन पहनते हो, आपका बॉडी अगर अच्छे शेप में नहीं है, तब गाइस जो बात होती है ना यार, वो बात आप समझ रहे होगे, वो बात मिसिंग हो जाती है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो मैं बस खाली अपीयरेंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके स्टेटस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दूसरों को अट्रैक्ट कर पाओ उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स की भी बात कर रहा हूँ। आप ओबेसिटी के शिकार हो, तब गाइस क्या मज़ा है यार, अंदर से आपका बॉडी खराब, ऊपर से आपका बॉडी खराब, और ये सब होने के बाद भी आप मज़े नहीं कर पाओगे यार। अगर मज़े उठाने ये सब चीज़ों के, तब आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग दिखना भी है और अंदर से स्ट्रॉन्ग रहना भी है। सो वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट, एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, वॉट एवर यू फील लाइक, वॉट एवर सूट्स योर बॉडी, डू दैट, बट do make it a habit of working out. Next, dress nicely. You have to dress up like a man. There is no escaping from this point. No matter what, no matter how busy you are, you have to dress up, you have to turn out in the best manner possible every time. कहीं भी जा रहे हो, even if you are at your home, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब अच्छा ड्रेसअप होते हो ना यार, this is a sign that you respect yourself, and along with that you also respect others whom you're talking to. अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं होना यार, वो इम्पैक्ट लो हो जाता है। ड्रेसिंग अप प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जो आपको समझना पड़ेगा। आप हमेशा अच्छे से ड्रेस्ड अप रहो। अगेन आई एम सेइंग इट्स अ साइन दैट यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू आल्सो रिस्पेक्ट द अदर पर्सन टू whom you're talking to. Next point, learn to ignore people who doesn't add value to your life. Learn to ignore people who deterrence you. Learn to ignore people who tries to ramble with you. Learn to ignore those people who are noxious to you, to your thoughts, to your mindset, to your lifestyle. Learn to ignore people who doesn't feel good for you. Learn to ignore people who doesn't pushes you to uplift yourself in whatever field possible. Next one, यार बहुत लौंडे होंगे 17, 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल के जो ये वीडियोस देख रहे होंगे। तो गाइज इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ हार्ड रिलेशनशिप ना यार, जो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ख़राब हुआ है, या फिर आपके फ्लॉज थे और आपने एक्सेप्ट किया पर वो फ्लॉज बहुत मिनिमल थे, आपने बहुत ट्राई किया उसको समझाने का, वो नहीं समझी, तो गाइज एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, और फ्यू मंथ्स भी चलता है ये सिलसिला, मुझे मालूम है। तो गाइज ट्राई करो, बट अगर वो नहीं समझ रही है तो आपको समझना पड़ेगा यार कि आपकी गलती नहीं है, तब भी आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो। इस चीज को समझो और आगे बढ़ो यार। मैं जानता हूँ ईजी नहीं है, बहुत टफ है, बट आपको एक लिमिट ड्रॉ करना है यार, उस बंदी को समझाओ। बट आप ऐसा भी मत करो यार कि आप बस सफर कर रहे हो, अकेले सफर कर रहे हो और बस सफर ही सफर करते जा रहे हो। दिस इज नॉट राइट यार, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब बॉयज करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ये सब बॉयज करते हैं। तो अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आप घबराओ मत, आप बॉयज की कैटेगरी में हो और आपने ये वीडियो देख लिया है आप, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप ये सब चीज करो, बट लिमिट में करो। लिमिट में करोगे, अपना लाइन ड्रॉ करके चलोगे, तो आगे वाले को भी समझ में आएगा कि यार मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। तो आप मेन की कैटेगरी में हो तो आपको अब पता है कि क्या करना है, कैसे चीजें हैंडल करनी है। आपके जो इमोशंस है ये आप पब्लिकली ज्यादा एक्सपोज मत करो। इससे क्या होगा ना यार, एज इट इज 80% ऑफ द पीपल को फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस फेज से गुजर रहे हो। 10% आपके लिए सोचते हैं कि यार क्या कर सकते हैं यार, इसको कुछ हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, वो अच्छा सोचते हैं। बट आप जानते हो ना यार, बहुत लोगों के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है, और जो 10% होते हैं ना वो ये भी सोचता है कि यार अच्छा हुआ इसके साथ ये हो गया। बताओ ऐसे लोग भी है। तो आपको डिपेंड नहीं होना किसी के सामने। हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करो, तो अपने छोटों से एक्सपीरियंस शेयर करो कि वो कुछ सीखे और समझे कि अगर ये चीज़ें उनके साथ होती है तो कैसे रिएक्ट करें। बट आपको इमोशंस ज़्यादा शो नहीं करना है किसी के सामने। फैमिली मेम्बर्स थम्स अप, और पीपल हु आर क्लोज टू यू थम्स अप, उनका सपोर्ट लो।
उनके साथ काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट पॉइंट, एज अ मैन वी डू नॉट सिम्प। आप ज़्यादा किसी को खुश रखने का ट्राई मत करो। आपसे कुछ गलती हो गई है तो सॉरी बोलो। अब कोई बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है तो ये नहीं कि आप सॉरी 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 सॉरी, यार गलती हुई है, सॉरी बोलो, बस गेट ओवर इट यार। आप मेच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करो। आप भी इंसान हो, आपसे भी गलती हो सकती है। और साथ ही साथ कोई आपकी बात को समझ रहा है तो ठीक है, कोई नहीं समझ रहा है तो सिर्फ वाला एटीट्यूड आपको हटाना पड़ेगा अपने लाइफ से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को भी इतना इंपॉर्टेंस मत दो यार कि वो आपको समझने लग जाए कि ये कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे एक सलमान खान की क्लिप याद आ गई। अगर आपको भी याद आई है तो कमेंट में यस लिखना। सो यार दैट वाज इट गाइस। आई होप यू guys liked it, enjoyed, learned a lot and you would implement it. You'll not just listen to it just like you do to any other video. आपको सीखना है, आपको इससे चीज़ें ड्रॉ करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, अपने लाइफ को चेंज करना है। आप ये सब चीज़ें करो, आपको मैं बता रहा हूँ आप बॉय से मेन कैटेगरी में आओगे और मेन कैटेगरी में आना बहुत ज़रूरी है। आपको एक मैक्सिमम पोटेंशियल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज तक पहुँचना है, तब आपको ये सब चीज़ें लाइफ में लानी पड़ेगी। लास्ट but not the least, do not forget to love, like, share, subscribe and click the bell icon for the latest video update. And do not forget to spread the love of Osmosis Man Lifestyle. This is Madhav Tulsian signing off. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop.